Good morning, class. Welcome again to this lecture of DBMS. So up till now, what we have seen basically what do you mean by data, what do you mean by information, what is a database, then what are database management system, and what is the purpose of database management system, what is the significance or what are the advantages of database system or traditional file systems. Then we have seen the different types of database like operational database, functional database, then database warehouse and so on many things. Then we have seen what do you mean by database schema, database instance and database abstraction. These are certain concepts for wave level. What is abstraction, what is schema, what is instance. And then recently in the last video we have seen what do you mean by database models and what are the different types of database models. So database models are being classified upon three different things, three different concepts, that is object based, record based and physical model. So in object based there are two models, that is object oriented and entity relationship model. In record based we have relational, network and hierarchical, and in physical we have unifying and frame memory model. So we have already seen relational model, a model wherein there is a table and within that table there is certain relation, and using a primary key or a foreign key you can retrieve the data. Second, you have seen hierarchical model. In hierarchical model it is like a family tree wherein there is a root and there are the elements and the branches, children and the siblings. Then we have seen the network model. In the network model it is just like hierarchical model, but the difference is that here you have so many relationships like one to many, many to many and so on. Now the next one is the object oriented database model. So here it is the diagram of object oriented database model. So here you can see there is a relation between these things. So you can see there is one salesperson here. This is a salesperson. Now this particular salesperson, he is having certain attributes. And what are the attributes of a salesperson? Like his name, his age and his salary. Then there is another thing, that is object, that is department. So department is having its own name, its budget, then something other features. Then you have another thing, address. So in address you have your name of street number, city, state, pin code, zip code and so on. So what we are doing, we are creating one object and for that object we are associating these values. हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट का नाम है सेल्स पर्सन और वो सेल्स पर्सन को हमने वैल्यू एसोसिएट किए नेम, एज और सैलरी. अब ये जो कंसेप्ट है ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स कंसेप्ट्स, दैट इज विच वी यूज्ड इन सीपीपी. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो कंसेप्ट है दे आर पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, मैसेजिंग, हायरार्ची एंड so many things. So वेज abstraction, encapsulation, तो ये उसके concepts है. तो जो वही concept हम यहाँ use कर रहे हैं, तो what we do during programming, we create one object and to that object, और उस object को फिर हम ये सारी values associate यहाँ पर करते हैं. To that particular value you associate, to that particular object you associate these values. और फिर इन objects के बीच में कुछ तो भी हम relations बताते हैं. जैसे अब salesman है, what happens, salesman और department का क्या relation है कि salesman वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट. मतलब इसकी यहाँ से कोई एक रिलेशनशिप है कि एक सेल्स पर्सन है वो एक डिपार्टमेंट में वर्क करता. अब वो डिपार्टमेंट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है और उसके भी डिफरेंट फीचर्स है, लाइक उसकी इन्फॉर्मेशन, डिपार्टमेंट नेम एंड बजट. अब सेल्समैन का एक अकाउंट है या फिर उसने कुछ ऑर्डर दिया है, ऑर्डर्स है, वैसे उसका कुछ एक स्पेसिफिक है वहाँ जहाँ पर रहता है, तो ये उनके बीच के रिलेशंस है. सो देयर इज वन ऑब्जेक्ट एंड देयर आर द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बीइंग स्टोर्ड देयर एंड विद इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देयर इज ए रिलेशनशिप. मतलब एक ऑब्जेक्ट है सेल्स पर्सन, एक ऑब्जेक्ट है डिपार्टमेंट, इनके बीच कुछ तो भी रिलेशनशिप है. मतलब वो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच एक रिलेशन है, या फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्क करता और वो ऑब्जेक्ट के हर एक के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे सेल्स पर्सन के नेम, एज, सैलरी एंड सो ऑन. सो दिस इज द object oriented database model. Now we have see what we have written about in this part. This model defines a database as a collection of objects or reusable software elements with associated features and methods. मतलब ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट और reusable सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स. मतलब ये ऑब्जेक्ट में आज अपन ने किया है, कल आप दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो और ये ऑब्जेक्ट आप वहाँ पर यूज भी कर सकते हो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस विथ एसोसिएटेड फीचर्स एंड मेथड्स.
अब इनके साथ हमने कुछ एसोसिएट किया, मतलब इसकी कुछ तो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने दी है। जैसे ऑब्जेक्ट सेल्समैन था तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके साथ जो वैल्यूज एसोसिएटेड थी वो वहाँ पर हमने स्टोर की थी। एंड देयर आर several kind of object oriented databases. A multimedia database incorporates media such as images that could not be stored in relational database model. अब ऐसे बहुत सारे हैं फिर ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट उसमें ऐसे है कि मल्टीमीडिया इमेज है, इमेज आप कैसे स्टोर करेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर इट इन अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो इमेज को हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, इमेज को हम लोग स्टोर करेंगे इन द काइंड ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट डेटाबेसेस है। अ हाइपरटेक्स्ट डेटाबेस अलाउज एनी ऑब्जेक्ट टू लिंक टू एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब ये जो आप बोलेंगे कि व्हाट इज दिस हाइपरटेक्स्ट, तो दिस आर सर्टेन लैंग्वेजेस, ये कुछ टेक्निक्स है। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से आप रिलेट कर सकते हो। व्हाट आई सजेस्ट यू इज दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू शुड स्टडी ऑन योर ओन। व्हाट डू यू मीन बाय URL, व्हाट डू यू मीन बाय XML, व्हाट डू यू मीन बाय HTML, and what is the difference between a database, what is the difference between a programming language, and what is the difference between a UI interface creating thing। क्योंकि एक चीज से आपने डिजाइन बनाया, एक सपोज आपको वेबसाइट बनानी, तो पहले आपने एक डिजाइन बनाया वेबसाइट का कैसे बनेगी, तो वो क्या था, उसके बाद में आपने कुछ लैंग्वेज यूज करके उसमें प्रोग्राम किया, फिर वहां से जो भी वैल्यू थी वो किसी डेटाबेस पे स्टोर हो रही, और फिर आपने उस वेबसाइट को अपलोड किया। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, दैट इज योर पार्ट स्टडी। श्योरली आई टेल यू, बट आई थिंक यू शुड डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, तो ये जो फिर होता है, इट अलाउज एनी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक किया। इट इज द बेस्ट नोन पोस्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सिंस इट रिकॉर्ड्स टेबल बट इजंट लिमिटेड टू टेबल। इसमें टेबल्स भी रहते हैं लेकिन सिर्फ ये टेबल तक लिमिटेड नहीं है। तो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटाबेस है वो रिलेशनल डेटाबेस की तरह उसमें भी टेबल्स है, लेकिन सिर्फ ये टेबल्स से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप वेबसाइट, जैसे जो मैंने आपको भी टास्क बताया था, अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो जो आप फ्रंट पेज उसका देखते हैं उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस और UI और GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जैसे आप एक फॉर्म भर रहे हो, सपोज आपको फेसबुक पे अकाउंट खोलना है तो आप एक फॉर्म भरते हो, तो फॉर्म आपको कैसा दिखेगा, उसमें वो उसका डिज़ाइन वो एक अलग पार्ट हो गया। अब आप उसमें इंफॉर्मेशन भर रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन कहीं तो भी जाके स्टोर हो रही है, तो वो हो गया डेटाबेस का पार्ट। लेकिन जब आपने फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद में उसको रन टाइम बनाया था, मतलब सिर्फ डिज़ाइन करने से क्या होगा, नहीं होगा। डिज़ाइन करने के बाद कुछ एक मैकेनिज्म लगेगा कि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन डाली जा रही है वो किसी डाटाबेस से जाके कनेक्ट हो। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसके में फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कंसेप्ट है, ओप्स कंसेप्ट, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जावा में भी यूज़ होते हैं, .NET में भी यूज़ होते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग हो गया एक अलग पार्ट। और फिर जब आप वेबसाइट अपलोड करने जाओगे, तो जब आप अपलोड करने जाओगे वेबसाइट, तो आपको एक स्पेसिफिक डोमेन चूज करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको एक एड्रेस मिलेगा और वो एड्रेस पे आपका एक पर्टिकुलर थिंग रहेगी, तो वो हो जाता आपका URL। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो अब हाइपरटेक्स्ट डाटाबेस मतलब क्या होता है, जो भी कुछ हम देते डाटाबेस, बेसिकली XML रहता, मार्कअप लैंग्वेजेस। तो ये कई सारी बातें। अब यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा सिर्फ ये समझना है कि आपको थोड़ा सा समझे कि एक्चुअली वेबसाइट कैसे बनती, डेटाबेस क्या होता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती, डिजाइनिंग लैंग्वेज क्या होती, और उसके बाद में फिर ये डेटाबेस मॉडल्स क्या है डिफरेंट। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, कोई तो भी उप्स कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर दे। दे आर नोन एज हाइब्रिड डेटाबेस। जिन डेटाबेस में सिर्फ टेबल्स नहीं रहते, बाकी रिलेशंस भी रहते, दे आर कॉल्ड एज हाइब्रिड डेटाबेस। उसके बाद में नेक्स्ट आता एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। इट कैप्चर्स द रिलेशनशिप बिटवीन रियल वर्ल्ड एंटिटीज। द कार्डिनेटी रिलेशंस बिटवीन एंटिटीज आर मैप्ड एज वेल। हियर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स अबाउट विच डाटा पॉइंट्स आर स्टोर्ड, referred to as entities, each of which has certain attributes and together make up their domain. It isn't directly tied to physical structure of database. Instead, it's often used for designing a database conceptually. अब ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे है, बट इन्होंने क्या किया यहाँ पर, इसको एक एंटिटी है। एंटिटी मतलब एनीथिंग कैन बी एन एंटिटी। जैसे एक कस्टमर एक एंटिटी है, तो उसके साथ एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड, कस्टमर नेम, फोन। फिर उसके बाद में उसने एक ऑर्डर प्लेस किया, तो ऑर्डर के साथ कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड है। तो इनके बीच का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड एज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इनके बीच में कुछ एक रिलेशन यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गया, दैट इज कॉल्ड एज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब ये रियल वर्ल्ड से आपने एसोसिएट किया इसको, हियर यू कैन सी much like network model, but it isn't directly tied to physical structure of the database. It is not directly tied to the physical structure of the database. It's often used for designing database conceptually. Conceptually आपको database डिजाइनिंग करने के लिए आप entity relationship model यूज कर सकते हो। अब आप entity की जगह पे objects भी ले सकते हो, तो object oriented भी मॉडल हो सकता है वो, और उन इसके बीच में कई सारी entities आप ले सकते हो, तो entity relationship model वहाँ पर वो डिफाइन किया जाता है। Now important part,
एट दिस स्टेज यू मस्ट जस्ट नो कि व्हाट आर द डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स, और उनको शॉर्ट में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. When we are going to study them in the next unit, we are going to study them in detail, each and everything. आगे चल के फिर हम इसको एक एक को डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है. So here what you should understand the different kinds of database models and on which basis they are being classified. अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड रिलेशनल डाटा मॉडल. दिस इज समटाइम्स आस्क्ड इन द एग्जाम. सो ये तो हमको डायरेक्टली समझ में आता. रिलेशनल मॉडल में हम क्या बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं. सबसे बेसिक जो मॉडल हमने देखा दैट इज रिलेशनल मॉडल. उसमें हमने क्या किए थे, टेबल्स बनाए थे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप क्लास बनाते हो. यहाँ पे वो ईच कॉल रो को टुपल या रिकॉर्ड बोलते हैं. यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस. इसमें एट्रीब्यूट रहता है कॉलम, इसमें रहते वेरिएबल, इसमें स्टोर्ड प्रोसीजर्स और इसमें मेथड. तो ये हो गया इसके बेसिक डिफरेंस. तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे मैं आराम से अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. यहाँ पर क्लास है, यहाँ पर टेबल है. मतलब हमने जो बनाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने क्या बनाया, पर एक क्लास बनाया, जैसे अपन यहाँ टेबल बनाते. लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपने अगर टेबल बनाया तो वो हाइब्रिड डेटाबेस हो जाएंगे एंड यू कैन डू दैट. सेकंड, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, यहाँ पर आप क्या करते हो, टुपल या रिकॉर्ड. टुपल मतलब एक स्पेसिफिक रो जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन है. यहाँ पे आपने क्या एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन है. ये एट्रीब्यूट है कॉलम्स में और यहाँ पे वेरिएबल्स है. अभी वेरिएबल्स मतलब जो वेरी होते रहेंगे. और वैसे हमने किया कि यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज लिखी, जैसे मेरा नाम, मेरा सपोज माय एज, माय फोन नंबर, माय एड्रेस, माय पिन कोड, फिर इट विल हैरी फॉर द नेक्स्ट पर्सन. और यहाँ पर है स्टोर्ड प्रोसीजर और यहाँ पर है मेथड्स. अब ये स्टोर्ड प्रोसीजर और मेथड दैट इज अ वेरी बिग कंसेप्ट. स्टोर्ड प्रोसीजर मतलब क्या होगा कि वहाँ पर आप डेटाबेस कैसे रिट्रीव करोगे. वहाँ पर आपको क्वेरी फायर करना पड़ेगा और डेटाबेस आपका रिट्रीव होगा. यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मेथड्स है और मेथड्स मतलब वो फिर उसके कंसेप्ट है, लाइक एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड सो ऑन, एंड बाय दैट यू कैन रिट्रीव दैट डेटा. अब उसके बाद में फिर इसके अलावा ये जो हमने देख लिया, दीज आर द मेन database models which we have seen up till now, that is entity relationship, object oriented, relational, hierarchical, network. These are the important databases we have seen up till now. उसके बाद में फिर और कई सारे database models हैं, जैसे inverted file model. It is with a database built with inverted file structure designed to facilitate fast full text searches. In this model data context is indexed in a series of keys. यहाँ पे देखो, it is The data context is indexed as a series of keys. जैसे हमने टेबल में देखा ना, स्टूडेंट आईडी में क्या था, स्टूडेंट आईडी जो हमने टेबल बनाया था उसमें स्टूडेंट आईडी से हमको बाकी सारी चीज़ें मिलती थी. तो इसमें आप कई सारी कीज लगा सकते हो और ये इससे कि आपको डाटा फटाफट मिलता है. इट इज़ बीन यूज्ड बाय ADBS डेटाबेस 19 supported, still supported today. But majority people what they use RDBMS, that is relational database. Second उसमें था फ्लैट मॉडल. इसमें क्या था, सिर्फ एक टेबल बना, उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दो, कोई दिमाग को झंझट नहीं. जब भी वो सर्च करना पड़ेगा वो पूरा टेबल छान मारेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा. अब फिर डेटाबेस इवॉल्व किए हुए. सपोज मैंने क्या किया था कि अलग अलग टेबल्स भी नहीं बनाए. मैंने क्या एक ही टेबल में सपोज एक ही कमरे में सब सामान रखा है, तो जब भी मुझे ढूंढना पड़ेगा पूरा सामान ढूंढ के वो पर्टिकुलर चीज़ बाहर निकाल देने पड़ेंगे. नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने कुछ तो भी नंबर दिया कि 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, फिर मैंने उस तरह से सामान रखा. तो अगली बार मेरा काम और आसान हो गया. उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने देखा कि एक नंबर पे इतना सारा सामान रखने के बजाय एक नंबर पे मैंने सिर्फ एक चीज़ रखी कोई भी, और वहाँ पे बुक पे लिख के रखा कि इससे रिलेटेड सामान कहाँ पर है. तो फिर उसके बाद क्या हो गया कि पूरा एक नंबर का सामान ढूंढने के बजाय मैंने अलमारी में पढ़ा कि ओके ये सामान वहाँ रखा है. तो दिस इज हाउ द डेटाबेस हैज बीन इवॉल्व. तो ये इनिशियल स्टेजेस है, जैसे फ्लैट मॉडल, इन्वर्टेड. हाँ, अब यहाँ पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज OLTP एंड OLAP, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. जो भी आपका डेटा है, जैसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपने पैसे डिपॉजिट किए और सामने वाले को पैसे मिल गए, तो ये जो डायनामिक ट्रांजैक्शन हो रहा, तो ये सब होता OLTP मॉडल पे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या करता, OLAP क्या करता, ये डाटा को एनालाइज करता. जैसे मैंने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया और मुझे बोला कि अब इसमें देखो कि सपोज मैंने स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने कितना अचीवमेंट किया, कितने यूनिवर्सिटी टॉपर्स आए, कितने लोगों का स्कोर 80% एंड अबव था, कितनों का पॉइंटर 9 के अबव था. तो ये सारी चीज़ें मैं उसको एनालाइज करूँगा बैठ के. तो ये एक अलग मॉडल हो गया. तो ये जो ये एक सपोज है कि एक हिसाब से आप इसको ऐसे समझ लो कि एक टेक्निक है, OLTP एंड OLAP, एक तरीका है जिससे हम लोग डेटाबेस को एनालाइज कर सकते हैं या फिर जो डेटाबेस यूज कर सकता. तो ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है इट इज रन टाइम, कि आप एक्चुअली जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो तब हो रहा है, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो. तो ड्यूरिंग एनालिसिस आप यूज कर रहे हो OLAP. ये आप यहाँ पर यूज करो टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज OLAP.
Now, multi-dimensional model. This is a variation of relational model designed to facilitate improved analytical processing. While relational modeling is optimized for online transaction, this model is designed for online analytical processing. Each cell in a dimensional data contains about dimensions like tracked by database. अब इसमें क्या होगा, सिर्फ एक टेबल में जैसा था वैसा नहीं है, इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का सपोर्ट है, साथ में आप डाटाबेस को एनालाइज भी कर सकते हो, आप उसमें फाइंड कर सकते हैं, एंड इट रिक्वायर्स टाइम। तो बेसिकली ये बैकग्राउंड में रन होते होते सारी चीज़ें पता करेगा। एनी विल आई लग टेल इट, यहाँ पे टॉपिक निकल गया तो आपको बताऊंगा कि जो भी डाटाबेस है वो इन्हीं इस पर फंक्शन करेगा, या तो OLTP या तो OLAP ट्रांजैक्शन। OLAP मतलब एनालिटिकल प्रोसेसिंग, जो उसको एनालाइज करेगा और आपको रेफरेंस निकाल के देगा। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, रन टाइम डायनामिकली जो ट्रांजैक्शन है वो उसको प्रोवाइड करेंगे। बाद में स्ट्रीम स्ट्रक्चर्ड है, इसमें कैसा है कि इसमें ऐसा कि कंटेंट है इसकी इमीडिएटली डाटा इटसेल्फ। डिस्टिंक्शन बिटवीन डाटा स्कीमा इज वेग, इट इज फॉर डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर, इट्स यूजफुल फॉर डिस्क्रीट इंटरेक्शन बिटवीन एंड ओके। इट इज यूजुअली कंटेन इन द डाटाबेस स्कीमा एंड इज एम्बेडेड विद इन द डाटा इटसेल्फ। अब वो स्ट्रक्चर है, सेमी स्ट्रक्चर है, और डाटाबेस स्कीमा के अंदर ही वो डिजाइन रहता। हियर द डिस्टिंक्शन बिटवीन डाटा स्कीमा इज वेग एट इट बेस्ड, मतलब उसमें कुछ खास ऐसा डिफरेंस नहीं है। वेब बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर के लिए जनरली ये स्ट्रक्चर यूज होता, बस हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है। कॉन्टेक्स्ट मॉडल मतलब अब ये कैसे किया कि जैसे अपने मॉडल क्लब किए, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे ये, यहाँ पे सारे मॉडल क्लब किए, तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट मॉडल। अब मैं बेसिक से आपको एक बात बताता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये बेसिकली जो डाटा स्टोर हो रहा, ये कहीं पे किसी सॉफ्टवेयर पे, किसी सर्वर पे, कहीं पे एक सेंटर पे डाटा स्टोर हो रहा। ये डाटा स्टोर हो रहा, तो ये किस तरह से स्टोर हो रहा, ये डिपेंड करता है आपने किस तरह का मॉडल लिया है। जैसे आपके घर में बहुत सारा सामान पड़ा है, आपने उसको स्टोर किया है, लेकिन आप उसको किस तरह से स्टोर करेंगे, तो आपने जो स्टोरेज खरीदा, जो आपने अलमीरा खरीदा, जो आपने स्टोरेज के लिए इक्विपमेंट खरीदा, उसमें जिस तरह से किया है कि ऊपर रोज है, नीचे कुछ और है, इधर साइड में लॉकर है, उस तरह से आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अब आप वैसे क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि आज से आपको रिट्रीवल ईजी होना चाहिए। तो यही सारी चीजें जो है, दैट इज ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा मॉडल्स, और ये सिर्फ डेटा मॉडल हो गए। अब इसके साथ जो आप डेटाबेस एक्चुअली कौन सा यूज करते हो, जैसे SQL या फिर आप MySQL या फिर वॉट एवर इट इज, MS एक्सेस या फिर और भी कहीं है, ओरेकल है, तो उसके हिसाब से आपका डाटा स्टोर होगा, और फिर सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट जो रिलेशनल डेटाबेस है, जो हमारा एक्चुअल वर्किंग होता, उसके लिए रिलेशनल डेटाबेस में जैसे सपोज आपको अगर इमेजेस का, वीडियोस का, इसका काम नहीं है, आपको सिर्फ डेटा चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, नंबर्स चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए, तो फॉर दैट रिलेशनल डेटाबेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, एंड दैट टू SQL एंड ओरेकल, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेटाबेस है। सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज डेटा एंड व्हाट आर द डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स। उसके बाद में फिर है NSSQL, मतलब ग्राफ के हिसाब से, जिसमें आपको ग्राफ बनाएंगे, इन्हें जैसा अपना था कि ऑब्जेक्ट बेस्ड था, तो बिना ऑब्जेक्ट का, लाइक वाइज। देन देयर आर मल्टी लेवल डाटाबेस, डॉक्यूमेंट मॉडल एंड सो मैनी थिंग, डाटाबेसेस ऑन द वेब। तो ऐसे काफ़ी सारे डाटाबेस यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारे डाटाबेसेस हैं। कई कंपनीज ने अपने अपने स्पेसिफिक डाटाबेस बनाए हैं, जैसे IBM का पता है, और कई भी छोटे मोटे डाटाबेसेस हैं, कई पहले से यूज होते आ रहे हैं। हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए स्टेज पे कि डाटाबेस मॉडल मतलब क्या होता है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो हमने देखे हुए, रिकॉर्ड बेस, उसमें था रिलेशनल, हायरार्चिकल, नेटवर्क, और ऑब्जेक्ट बेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड एंटिटी रिलेशनशिप। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज DBMS लैंग्वेजेस। अब हम स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं RDBMS, दैट इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम किस डाटाबेस की बात कर रहे हैं, SQL की। SQL में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्या है, स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या होता है, कुछ तो भी एक फॉर्म, क्वेरी मतलब आपका कुछ क्वेश्चन है, और लैंग्वेज मतलब यू आर यूजिंग टू एक्सप्रेस दैट क्वेरी इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। मतलब मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे एक सही तरीके से आपसे बात करनी पड़ेगी। जैसे देखो कि अगर आपको सपोज यूनिवर्सिटी के साइट से कुछ डाउनलोड करना है, तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, या फिर आपको आपके स्टूडेंट लॉगिन में कुछ चेंज करना है यूनिवर्सिटी के साइट पर, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, मतलब एक कुछ ना कुछ प्रोसेस है। तो आप यहाँ से अपडेट कर रहे हो, लेकिन वो वहाँ पर जाके अपडेट होना चाहिए। तो इसके लिए कि आप सीधे सीधे एप्लीकेशन देके तो नहीं कर सकते हो, तो इसकी एक प्रोसेस है। तो इसको हम बोलते हैं तरीका, या फिर स्ट्रक्चर किया हमने। जैसे आपको सपोज एक बाहर जाने के लिए, अगर आपको सपोज इंटर्नशिप के लिए जाना है, या फिर कहीं पे आपको एक वर्कशॉप करने जाना है,
तो आपको इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, HOD परमिट, ए प्रिंसिपल परमिट, देन यू विल गो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, दे विल चेक ऑल द डिटेल्स, और वहाँ से जब वो आपको फिर अलाउ करेगा, वो आपको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट अलॉट करेगा, फिर जब आप रिटर्न आओगे तो दे विल गिव यू सर्टिफिकेट। तो ये सारी एक प्रोसेस है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, एक सही तरीके से बना है। तो आपकी जो भी क्वेरी है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बना के प्रेजेंट करना है, एंड फॉर दैट द लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज SQL, दैट इज SQL, एंड दिट इज अ काइंड ऑफ टाइप ऑफ DBMS लैंग्वेज, मतलब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी एक ही लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज जैसे एक डेटाबेस हो गया तो उसमें ये लैंग्वेज यूज होती है। अभी ओरेकल में भी आप SQL यूज करते हो। तो हम जो डेटाबेस की बात करें, बेसिकली वी टॉक अबाउट SQL, द डेटाबेस इज RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब यहाँ से अपना एक्चुअल टास्क शुरू होता है। अब तक तो हमने थियोरेटिकल पार्ट देखा था, लेकिन अब एक्चुअली सपोज हमने एक डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद में हम लोग उसमें कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करेंगे, रिट्रीव कैसे करेंगे, उसके लिए हमको क्या क्या क्वेरीज फायर करना पड़ेगा। सो ये सब हमको सीखना मिलेगा इन दिस DBMS लैंग्वेज। ओके, तो सबसे दैट इज SQL का हैपी इट इज इक्वल टू DDL प्लस DML प्लस DCL। DDL मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML मीन्स मैनिपुलेशन, एंड DCL इज कंट्रोल। डेफिनेशन, उसके बाद में मैनिपुलेशन, और उसमें कंट्रोल। अब DDL में क्या आता है? DDL में ये सारे कमांड्स है, जैसे बस आपको क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम, यानी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, आप अल्टर कर सकते हो टेबल स्ट्रक्चर उसका, आप डाटाबेस में से एक पर्टिकुलर ड्रॉप कर सकते हो इंस्टेंस, या फिर आप डिलीट कर सकते हो या रीनेम कर सकते हो। तो ये जो सारे कमांड्स है दे आर कॉल्ड एज डेफिनेशन, मतलब इससे आप क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो। नेक्स्ट जो आपकी कमांड देंगे, जैसे हम फोन में, जैसे आपने किसी का नाम स्टोर किया, नंबर स्टोर किया, नाम स्टोर किया, नंबर स्टोर किया, उसका व्हाट्सअप नंबर स्टोर किया, तो ये आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर करी, तो ये आपने डिफाइन किया कि ओके, जैसे आपने एक टेबल बनाया, उसमें आपने सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, हिज डिपार्टमेंट, हिज मार्क ऑफ 12th, SSC एंड सो ऑन। तो आपने एक तरह का एक डेफिनेशन बनाया, एक टेबल बनाया, और ये आपने डिफाइन किया। अब उसमें आप इंसर्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको टेबल बनाना है, तो वो हो गया आपका क्रिएट। फिर उसमें आपको टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको वहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट करने पड़ेंगी। तो सेकंड पार्ट हो गया। पहला पार्ट हो गया आपने डिजाइन किया, डिफाइन किया, तो वो जो डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। It is a language that allows the users to define data and their relationships to other types of data. It is mainly used to create files, databases, data directory and tables, data dictionary and tables. अब डिक्शनरी मतलब ये एक अलग वर्ड यहाँ पर आ गया, I'll tell you. आपने सपोज कभी भी कुछ भी पढ़ा होगा, जैसे आप कोई कंपनी का एक डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, या आप कोई एक स्कीम पढ़ते हो, या फिर अपना जो ब्रोशर ही पढ़ते हो, अगर DT का आपने ब्रोशर पढ़ा होगा, तो उसमें उनकी एक डिक्शनरी रहती है। जैसे उसमें बोलेंगे कि हियर ऑनवर्ड्स, कि जब भी मैं बात करूंगा कंपनी, तो कंपनी मतलब ये 3 लोग, या फिर अगर वो बात करेंगे टेक्निकल की, तो टेक्निकल मीन्स इंजीनियरिंग, या फिर वो बात करेंगे कैंडिडेट, तो कैंडिडेट मतलब वो कैंडिडेट जो एडमिशन लेना चाहता है, या फिर वो बात करेंगे ID की, तो ID मीन्स योर एनरोलमेंट ID। तो वहाँ पर जो कुछ भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, उन वर्ड्स का मीनिंग आपको उनको देना है, तो वो क्रिएट करने के लिए दैट इज डाटा डिक्शनरी। फाइल्स तो ऑब्वियसली हम क्रिएट कर ही रहे हैं उसके लिए, और टेबल्स क्रिएट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो दिस इज द वेरी सिंपल थिंग, वेरी फर्स्ट डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसके हम एक्चुअली प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे। विल इंस्टॉल एन ओरेकल ऑन सिस्टम, देन विल क्रिएट अ टेबल, देन यू कैन सी दैट टेबल, वो क्रिएट करने के बाद हमको दिखाई देगा। उसके बाद में हम क्वेरी फायर करेंगे, और जो हमको आउटपुट चाहिए रहेगा वो आउटपुट भी हम उससे लेंगे। और ये जब प्रोसेस होगी तब आपके ख्याल में आएगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेरीज, हमको इतने सारे कॉम्बिनेशन चाहिए रहते हैं। सो फॉर दिस वी रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक डेटाबेस, इसके लिए कुछ एक अलग से डेटाबेस की जरूरत रहती है। It is also used to specify the structure of each table, set of associated values with each attribute, integrity constraint, security and authorization. अब देखो, अगर आपने एक टेबल बनाया तो उसमें आपको क्या क्या एट्रीब्यूट्स लेना है, उसके बाद में वो टेबल को एक्सेस किस किस को देना है, मतलब किस किस को टेबल दिख सकता, कौन वो टेबल को एडिट कर सकता, कौन वो टेबल को डिलीट कर सकता, कौन उस टेबल में इंसर्ट कर सकता, वो टेबल को अल्टर कौन कर सकता, उसमें 2 एट्रीब्यूट्स कॉलम और कौन ऐड कर सकता, या फिर वो टेबल को रीनेम कौन कर सकता। तो ये आपको ऑथराइजेशन दे जाए। सिंपल है, एडमिन लैगिंग। जैसे आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाओगे तो आप वहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए मिलेंगी, लेकिन उसके अंदर आपको चेंज करना है, एग्जाम का टाइम टेबल डालना है, तो वो राइट्स आपके पास नहीं है, दैट आर
with the admin. तो इसी तरह यहाँ पर आप डिफरेंट राइट्स क्रिएट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइजेशन. तो ये जो सारी इनिशियल स्टेजेस होगी कि जब आपने एक टेबल क्रिएट किया, एक डेटाबेस क्रिएट किया, एक फाइल क्रिएट की, उसकी एक डिक्शनरी बनाई, फिर आपने उसका स्ट्रक्चर बनाया, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होंगे वो बनाए, और उसके बाद में फिर आपने उसकी सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन किया. तो ये सब हो गया, दैट इज वेरी फर्स्ट कमांड, दैट इज DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. DDL एंड नॉट DDLJ, है ना. DDLJ से भी सब लोगों को याद हो गया, है ना. तो दिस इज नॉट DDLJ, ये याद रखना मुश्किल भी नहीं जाएगा. DDL, जे छोड़ दो, बस DDL. टू क्रिएट द डेटाबेस इंस्टेंस यू हैव अ कमांड क्रिएट. अब ये कमांड कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल सिर्फ आप इतना समझो कि ऐसी एक कमांड है. टू क्रिएट द डेटाबेस इंस्टेंस देयर इज वन कमांड, दैट इज क्रिएट. टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस देयर इज वन कमांड, दैट इज अल्टर. टू ड्रॉप द डेटाबेस इंस्टेंस देयर इज वन कमांड, दैट इज ड्रॉप. एंड टू डिलीट टेबल्स इन अ डेटाबेस इंस्टेंस देयर इज अनदर कमांड, दैट इज ट्रंकेट. ट्रंकेट मतलब आपने कुछ बनाया था, उसको आपको डिलीट करना है, तो आप क्या करते हो, ट्रंकेट. टू रीनेम द डेटाबेस इंस्ट्रक्शंस, डेटाबेस इंस्टेंस, यू हैव कमांड दैट इज रीनेम. तो ये 5-6 कमांड है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम. दीज आर रिलेटेड विद DDL, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम. क्रिएट से आप डेटाबेस इंस्टेंस, टेबल, फाइल, डायरेक्टरी आप क्रिएट कर सकते हो. अल्टर से आप उसको, अल्टर मतलब चेंज कर सकते हो, उसको कुछ ऐड करना है, उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, वो स्ट्रक्चर में, उसके वैल्यूज में नहीं. उसके बाद में टू ड्रॉप, अगर आपको ड्रॉप करना है वो, तो फिर आप ड्रॉप यूज कर सकते हो, मतलब उसमें से कुछ चीज़ें हटानी है और आपको पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना है, तो फिर आप ट्रंकेट कमांड यूज कर सकते हो. एंड देन यू यूज द कमांड रीनेम टू नेम दैट पर्टिकुलर कमांड. नाउ देन सेकंड वी हैव सीन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स. डोमेन कंस्ट्रेंट्स, वैल्यूज मस्ट बी एसोसिएटेड विद एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज मस्ट बी सेम इन रिलेशंस, assertion is a condition that DB must satisfy, and authorization type of access or privileges to do something. अब देखो डोमेन कंस्ट्रेंट, जैसे मैंने अब अगर टेबल बनाया और उसमें बोला इंसर्ट योर मोबाइल नंबर, लेकिन आप अगर मोबाइल नंबर की जगह पे आपका नाम डालते हो या फिर आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स डालते हो, हैश, हैशटैग एंड सो ऑन, तो फिर वो मैंने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. तो दैट इज डोमेन कंस्ट्रेंट की वैल्यूज मस्ट बी एसोसिएटेड विद एट्रीब्यूट्स एंड दे मस्ट बी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. तो वहां पर फिर कुछ मुझे करना पड़ेगा. वैल्यूज मस्ट बी एसोसिएटेड विद एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने डाला वहां पर माय नेम, तो आपने वहां पर नाम डालना चाहिए. तो ये हो गए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स. एंड वैल्यू मस्ट सेम इन रिलेशन, इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने अगर नाम लिखा है तो आपको भी आपका नाम ही डालना पड़ेगा सेकंड, वहां पे दूसरे का फोन नंबर नहीं आएगा. असर्शन इज एनी कंडीशन दैट DB मस्ट सेटिस्फाई. असर्शन मतलब अगेन वही कि सेम थिंग, दैट यू हैव टू फिल द राइट डेटा, सही डाटा वहां पर इंसर्ट होना चाहिए. अब अगर सपोज जैसे आप कहीं भी अगर आपका ईमेल आईडी डालते हो तो व्हाट दे चेक इन एन ईमेल आईडी कि @and.com वहाँ पर है या नहीं है, और स्पेसिफिक मेल्स है जैसे रेडिफ है, याहू है, हॉटमेल है, जीमेल है, एंड सो मैनी मेल्स, बहुत सारे मेल आईडी है, बहुत सारे ईमेल्स हैं, तो यू कैन यूज एनी वन. तो वो चेक करते कि वो पर्टिकुलर @and.com वहाँ पर आपका है या नहीं है. तो अगर वो दैट मीन्स योर ईमेल इज करेक्ट. लेकिन फिर जो एडवांस सर्वर्स रहते हैं, जब आप रन टाइम एप्लीकेशन देखते हो तो जिनका डेटाबेस बहुत बड़ा है, वो क्या करेंगे, वो चेक करेंगे पूरे उनके पास जितने ईमेल आईडी और बताएंगे नहीं सर ये इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, ये बैंक में ये ईमेल आईडी कुछ एग्जिस्ट होता ही नहीं, एंड देन देयर यू विल गेट एन एरर. So that is the very first thing we have seen today, that is DDL, that is data definition language. Data definition language, ये आपने सबसे पहली चीज यहाँ पर देखी. In the coming lectures, following lectures, we will see what do you mean by DML and what do you mean by DCML, DCL. DML में जैसे select, insert, update, delete, और उसके बाद में DCL में आएगा grant, revoke and commit. So that we will see in the coming lecture. So for now it is enough. Sufficient for you people. Again I advise you to make a register, to write down all the points what you have learned. If you are having any query, just note it down separately and then we can solve it and then we can move further. Okay, so see you in the Google Meet. Till then, thank you class. Good day. Jai Hind.